अनबॉक्सिंग हो गई है। एक और गद्दा है। Hello everyone, welcome back to Gurkul Vlogs. Hope you all are doing great. Today is an exciting day because I have ordered a new study table for our bedroom and I can't wait to unbox it and show it all to you. So I ordered this study table from Amazon after a lot of searching. I wanted something compact yet sturdy, perfect for working, editing, and even for Mihir's and Marsha's studies. Now let's open it and see how it looks. So the packaging looks good and all the parts seem to be here. It comes with screws and an instruction manual and a simple design that looks easy to assemble. Now comes the fun part, assembling the table. Let's see how easy or tricky this is. Although I already have a study table, but that is a very big one. I was looking for some compact options. It fits perfectly in room and doesn't take up much space, and it looks great. So I think this will be really useful for both work and study sessions. So in the beginning I find it quite difficult to assemble, but later on my son, he helped me and we were able to install it. So friends, this clip is from the next day. So I just gave Masha a nice warm bath and now she is feeling a little chilly, so she's getting ready for her school. Since she's feeling cold today, I'm making sure she wears a warm sweater and comfy socks. I don't want her catching a cold. And look at her all bundled up. Masha, she is ready for her school now. So after dropping Masha at her school, I got straight to work. First, I'm sorting all the clothes for washing. Now that everything is sorted, it's time to load the machine. The machine will take care of the rest while I move on to the other chores. First, I am folding the quilt we used last night, and it's always a good habit to put it away properly in the morning so that the bed stays neat throughout the day. Folding it properly saves space and makes the room look tidier, plus it's easier to grab later when needed.
Now I am setting the pillows properly. After a night's sleep, they lose their shapes, so a little fluffing makes them fresh and comfortable again. Now that the pillows and quilt are in place, I'm fixing the bed sheet. Even though I'm not changing it today, I like to smooth it out so that the bed looks fresh and neat. First, I am spreading the bedsheet properly so that it covers the entire bed neatly. A well laid bedsheet instantly makes the room look clean and organized. I always make sure there is no wrinkles. A properly spread bedsheet not only looks nice but also feels more comfortable to sit and lie on. Now I am tucking in the edges so that the sheet stays in place throughout the day. This gives the bed a new, neat and crisp look. Little details like this makes such a big difference in keeping the room tidy and presentable. हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, मैं स्कूल जा रही हूँ। हैं मासा ना मासे हाँ बिल्लो। ये है वो स्टडी टेबल जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करा था। इसको मैंने बेडरूम में रख दिया है एक कॉर्नर पे। अच्छा है, ये देखो मैं दिखाती हूँ। बहुत ही कम जगह लेता है। सही है, मैं भी कुछ काम कर रही थी अपना। बिल्कुल सही है। एवरीवन, वेलकम टू गुरकुल ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? और आज डे है, वेंसडे है आज। और माशा को मैं सुबह स्कूल छोड़ के आई थी, अभी आ गई है स्कूल से। ये देखो खेल रही है, बेड पे है। और आफ्टरनून का टाइम है। मिहिर भी अभी स्कूल से आने वाला है। अभी बस मैं किचन में जाऊंगी। पालक लेकर आई थी सुबह, पालक। हेलो। पालक और पनीर, बस वो बनाना है मुझे मिहिर के लिए। और कपड़े भी धुल गए हैं ऑलमोस्ट। बस एक बार का भी रहता है लोड धोने के लिए। वो एक्चुअली जगह नहीं थी कपड़े डालने के लिए, तो मैंने सोचा जो पहले धुले हुए हैं वो हो जाए, उसके बाद लास्ट लोड जो है वो बाद में धोऊंगी। और बस सुबह मार्केट गई थी मैं, तो कुछ सब्जी और फ्रूट्स वगैरह मैं ले आई थी सुबह। अभी बस वही खाना ही बनाना है और कुछ बर्तन पड़े हुए हैं वो धोने हैं। बहुत दिन हो गए मैंने ना आपसे बात नहीं करी कोई भी। कुछ लाइफ अपडेट्स जो है वो मैं देना चाहूँगी आपको, क्या हो रहा है अभी लाइफ में। गौरव से मेरी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले। वैसे तो बात हमारी डेली होती रहती है, दिन में 2-3 बार, पर उनके ट्रांसफ़र को लेके बात हुई थी कि अभी क्या है आगे, वो यहाँ पर आएंगे या कंपनी स्विच करेंगे, कहीं और जॉब देखना है, मतलब वही सब बातें हो रही थी हमारी। फाइनली उनके अपने सीनियर से, अपने बॉस से बात हुई, तो उन्होंने उनको बोला कि उनको अभी मुंबई ही रहना है, गौरव को। तो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने मुझे बोला है कि अपनी वाइफ से, मतलब मेरे से, कुलवीर से बात कर लो और आप मुंबई ही शिफ्ट कर लो। तो उस दिन जब मुझे बताया ना गौरव ने, उस दिन के बाद मूड बड़ा मेरा ऑफ रहा। डांस हो रहा है माशा का।
उस वजह से मैंने ना 2-3 दिन, कितने दिन तक की, आई थिंक ज़्यादा दिन ही हो गए, कितने दिन तक मैंने कैमरा नहीं उठाया, बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करी। आप मेरी बात ही नहीं सुनने दे रहे हो माशा, आप डांस कर रहे हो। सो बड़ा ज़्यादा ना मैं मतलब डिस्टर्ब रही उस चीज़ को लेके। आप पहले डांस कर लो। मेरी बात तो कोई सुनेगा ही नहीं, सब आपका ही डांस देखेंगे। लाइट आ रही है यहाँ से। तो फाइनली अभी जो है, उन्होंने जब मुझे बताया, बहुत ज़्यादा ना मैं डिस्टर्ब रही, उस वजह से कुछ भी कर नहीं पाई। इवन जो वीडियोस पहले की मैंने शूट कर रखी थी उनको भी मैं एडिट नहीं कर पाई, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। और फिर बहुत सोच समझने के बाद फिर मैंने इनको बोला कि अभी आप जाना, संडे वाले दिन जब इनको छुट्टी होएगी, ऑफ रहता है, उस दिन जाएंगे, देख कर आएंगे कुछ फ्लैट्स वगैरह वहीं मुंबई में, क्या रेंट है, क्या हमारा सामान सारा जा पाएगा या नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी ना मेरा सारा सामान जो है वो आ गया था, पर सोफ़ा जो है वो लिफ्ट से नहीं आया था, सोफ़ा को बाहर स्टेयर से लेके आना पड़ा था। और मुंबई में तो मुझे गौरव बता रहे थे कि यहाँ पे फ़्लैट तो और भी ज़्यादा छोटे हैं। और मुझे याद है कि जब हम पुणे में रहते थे ना, तब भी मेरा जो है अलमारी और साथ में दीवान बेड जो है वो भी ना हमने गैलरी से ही चढ़ाया था ऊपर फ्लैट में। सो अभी सामान बहुत ज़्यादा है, तो कह रहे थे कि हो सकता है कुछ सामान बेचना पड़े। और मैं कोई भी सामान जो है ना वो मैं बेचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हर एक सामान के साथ एक ना याद जुड़ी हुई है। कैसे, मुझे एग्जैक्टली याद है कौन कौन सा सामान हमने कब कब लिया था, कैसे कैसे लिया था। सो मैं उन बहुत मेहनत से बनाई हुई चीज़ें जो होती हैं, स्पेशली जो अपने फर्स्ट टाइम जो चीज़ें आपने पैसे जोड़ जोड़ के सेविंग करके जब आप लेते हो ना कोई चीज़, तो उसको बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया और मैं रोई भी, बहुत ज़्यादा रोई। 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा मन ख़राब था। फिर आगे लगा कि भाई अगर यहाँ पे वो आते हैं, क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो गया हम दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, गौरव मुंबई और मैं पुणे। तो अभी फ़िलहाल पता नहीं आगे उनको यहाँ नोएडा या गुड़गांव में जॉब कुछ मिलती भी है या नहीं, या फिर दोबारा से सेम कंपनी में ही वापस आते हैं नोएडा या नहीं, अभी कुछ मतलब कंफर्म नहीं है। मुंबई का तो कंफर्म है, वो कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को वो यहाँ ले आओ, मुंबई ले आओ। सो आज मैंने कुछ स्कूल से भी बात करी थी, 2-3 स्कूल में इंक्वायरी मैंने सबमिट करा था माशा और मिहिर के नेक्स्ट क्लासेस के लिए। सो लेट्स सी, अभी मतलब अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है कि वहाँ जाना है मुंबई, या फिर जैसे 1 साल हम लोग रहे हैं पहले, मैं यहाँ रहूँगी और बीच बीच में गौरव आते रहेंगे हमारे पास, ऐसा करेंगे या शिफ्ट करना या नहीं, मतलब कुछ नहीं पता कि ये सामान जो है ये बेचना है या रखना है या मुंबई जाके नया लेना है, कुछ भी अभी फ़िलहाल जो है ना नहीं पता। सो बस यही सब चीज़ें ना थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में चल रही थी, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अभी मैं बात करने लगी हूँ ना, तो अभी अच्छे से बात कर रही हूँ। शुरू में जब शुरू करा था ब्लॉग तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। ज़बान ऐसे आगे पीछे हो रही थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं बन पा रहे थे मेरे से। इट हैपन्स वन हम लोग अच्छे से खुश नहीं होते ना, मन से अंदर से जो कुछ चीज़ हमें अगर बॉदर कर रही हो तो वो आई थिंक दिख ही जाती है बाहर भी। सो ये था एक छोटा सा अपडेट, छोटा सा, बहुत बड़ा है, 360 डिग्री जैसे लग रहा है, बिल्कुल चीज़ें घूम रही हैं मेरे लिए। सच बताऊँ तो मैं जाना नहीं चाहती यार मुंबई। मेरे इन लॉज यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, मायका ससुराल में है, मायका ससुराल में, मायका अमृतसर में है, ससुराल दिल्ली में है, बच्चों के फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, और मेरा भी यहाँ पे ना दिल लग गया है, अच्छा लगता है। वैसे कोई फ्रेंड्स तो नहीं है इतने, पर अच्छा लगता है यहाँ पे, और मेरा मन नहीं है कि मैं मुंबई जाऊँ। चलो
पहले तो फ़िलहाल किचन में चलती हूँ, मिहिर आने वाला है, उसके लिए खाना बनाना है, मैंने लंच बनाना है। भूख लग रही होगी उसको, आते ही खाना मांगेगा।